Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, food health and hygiene. Learning objectives, health, food and its components, water and roughage, cleanliness and rest, communicable and non-communicable diseases, prevention of communicable diseases, vaccination. Health. The term health refers to the state of complete physical and mental well-being. It means that any person who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy. You can become healthy by following these steps. Eat a balanced diet, exercise regularly, be clean and keep your surroundings clean too. Take proper rest, protect yourself from diseases. देखिए हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है कि आप फिजिकली फिट हों, आप मेंटली भी फिट हों, राइट? तो देखिए इसका मतलब है कि कोई पर्सन जो फिजिकली एंड मेंटली साउंड है उसे ही हम हेल्दी कंसिडर करें. तो आप सभी भी हेल्दी हो सकते हैं अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे एंड अपने आप को बीमारियों से बचाएंगे. Food and its components. Food is one of our basic needs. Without it, we can't survive. Food contains nutrients which are the building materials of the body and provide us with energy for growth in other activities. These nutrients includes carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. We must eat food that is rich in all these nutrients to live healthy. अब देखिए फूड हमारा बेसिक कंपोनेंट है, बिना इसके हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. तो फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आपका है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या फिर वाइटामिन्स. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Carbohydrates. Food rich in carbohydrate give us energy. The source of carbohydrates are potato, rice, bread, cereals, sugar, fruit, etc. जो फूड कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Fats, they also give us energy, but more than that given by carbohydrates. Fats and carbohydrates together are known as energy-giving foods. The sources of fat includes butter, meat, cheese, vegetable oil, nuts, milk, क्रीम एंड घी. अब देखिए फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जा सकता है. प्रोटीन्स. Proteins are known as bodybuilding components. They are essential for the growth of our body. Some sources of proteins are eggs, milk, fish, cheese, soya beans, pulses and meat. प्रोटीन आपके बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं. यह बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कुछ देखिए आपको सोर्सेस दिए गए हैं प्रोटीन्स के. यू शुड कंज्यूम ऑल दीज. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals are protective components. They help our body to fight diseases and thus keep it fit. There are different vitamins that are needed for different purposes in our body. Green leafy vegetable, fruits and fish are different sources of vitamins. Minerals help in the formation of teeth, bones and blood. Minerals can be obtained from fresh fruit, milk and vegetables, eggs, etc. अब देखिए vitamins and minerals आपके protective food हैं क्योंकि ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, राइट? आपको ये हालांकि बहुत थोड़े से क्वांटिटी में चाहिए होता है बट इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. सो हियर आर द प्रोडक्ट्स गिवन टू यू. ये सारे ही आपके सोर्सेज हैं विटामिन्स के एंड आपके ये सारे ही सोर्सेज हैं मिनरल्स के. Water. Nearly 70% of our body weight is water. Water does not have any nutritive value, but it is vital for our survival. An average adult must drink at least 8 to 10 glasses of water daily. Functions of water in our body are as follows. It helps in the digestion of food. It acts as a medium for various processes that occur in the body. It helps in the removal of wastage from the body in the form of urine and sweat. It maintains normal body temperature. It helps to keep our body hydrated. अब देखिए न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारी बॉडी को वाटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेट है लगभग 70% वो वाटर ही है. तो देखिए वाटर के क्या फंक्शन है. सबसे पहले तो डाइजेशन में हेल्प करता है. ये आपके एक मीडियम का काम करता है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. ये बॉडी से वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. इसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है एंड हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. Roughage. Roughage is a fiber present in the plant food that remains undigested. Roughage is found in pulses, cereals, and leafy green vegetables such as spinach and cabbage. Roughage adds bulk to the food and helps in digestion. अब roughage आपके plant food में जो फाइबर होता है उसे कहते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले तो ये फूड के साथ बल्क ऐड करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. It prevents constipation and also helps in bowel movements. It keeps our digestive system healthy. इसके अलावा रफेज जो है आपको constipation
से प्रिवेंट करता है, राइट, एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है. Exercise. Regular exercise is an important part of staying healthy. Here are some benefits of exercising. Exercises make our muscles and bones strong. Regular exercises improve blood circulation of the body. Exercises tone up our body muscles and thus keep our body in a good shape. अब रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए. तो कुछ बेनिफिट्स इसके हैं, जैसे कि एक्सरसाइज से हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रांग होती हैं. रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. एक्सरसाइज हमारी बॉडी मसल्स को टोन अप करते हैं और इससे बॉडी जो है एक अच्छी शेप में रहती है. Correct posture. The term posture refers to the position in which we hold our body upright while standing, sitting, moving or lying down. We must stand, sit and walk in such a way that our back remains always straight. Proper posture prevents backache, muscular pain, strain and stress on body parts and gives a smart appearance to our body. देखिए posture का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से होल्ड के रखते हैं, यानी कि आपको एकदम अपराइट रहना चाहिए, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे बैठे हैं या आप लेटे हुए हैं. ठीक है, तो हमें इस तरह से चलना चाहिए, बैठना चाहिए, वॉक करना चाहिए कि हमारी जो बैक है हमेशा स्ट्रेट रहे, राइट. तो अगर आपका प्रॉपर पॉस्चर है उससे आपको बैक एक भी नहीं होगा, मस्कुलर पेन भी नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अ नंबर ऑफ अदर वेज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, दैट इज वॉकिंग इन द पार्क, प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग योगा आर अ फ्यू ऑफ देम. इसके अलावा क्या है कि देखिए, अगर आप पार्क में वॉक करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, योगा करते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी. Cleanliness. Cleanliness is a must to preserve health and prevent the spread of diseases. It is an essential component of healthy living. No one likes to be close to a person who is dirty or to go to a place which is dirty and stinks badly. Unclean conditions often lead to spread of diseases. So, it is important to follow rules of cleanliness and promote the importance of cleanliness in community, school and other places. Here are some ways to maintain hygiene. देखिए, क्लेanलीनेस यानी सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे बीमारियां जो है वो स्प्रेड नहीं होती हैं. और देखिए, कोई भी पर्सन है, कोई भी गंदा नहीं रहना चाहता, ना ही किसी डर्टी प्लेस पे जाना चाहता है, राइट. तो जो अनक्लीन कंडीशंस होती हैं उससे काफ़ी सारी बीमारियां होने का डर भी रहता है. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लेanलीनेस के रूल्स को फॉलो करें. Wash your hands with soap and water before eating food or touching any food items. Similarly, wash your hands properly after going to the toilet and playing with your pet. Washing hands with soap and water removes dirt and germs present on your hands. Take a bath daily. This removes the dust and sweat present on your body. Moreover, it makes you feel fresh. Dry your towel in the sun after bathing and get it washed twice a week. खाने से पहले या किसी भी चीज़ को टच करने से पहले आपको क्या करना है, कोई भी फूड आइटम अगर आप टच करें आपको हाथ धोने अच्छे से, ओके. और खाना खाने के बाद भी आपको हाथ धोने. आप टॉयलेट जाते हैं या खेल के आ रहे हैं अपने पेट के साथ तो आपको हैंड वॉश करना है. रोज़ाना आपको नहाना है, राइट. इससे आपके बॉडी में जो भी डस्ट या स्वेट होगा सब रिमूव हो जाएगा. और अपने टॉवल को आपको क्या करना है, उसको सन में ड्राई करना और हफ्ते में 2 बार उसको ज़रूर वॉश करना है. Brush your teeth at least twice a day. Brushing your teeth removes the food particles that are stuck in between the teeth, thus preventing the growth of germs. Also clean your tongue with the tongue cleaner daily. Trim your nails regularly. आपको daily 2 टाइम ब्रश करना है, अपने nails भी regularly trim करने हैं. The exposed part of the body come in contact with dust and germs throughout the day which get collected on them. So you must wash your face, hands and feet with soap and water before going to bed and moisturize them with cream or lotion to keep them soft. Keep your room, home, school and other surroundings clean. अच्छा, आपकी जो बॉडी का एक्सपोज पार्ट है वो आपके डस्ट या जर्म्स के कॉन्टैक्ट में आ जाता है थ्रू आउट द डे. तो आपको क्या करना चाहिए, आपके फेस, हैंड्स, फीट को अच्छे से वॉश करना चाहिए सोने से पहले. देन उनको मॉइस्चराइज करना चाहिए. अपने रूम को, स्कूल को और होम को कि और जो दूसरा भी सराउंडिंग है उसे आपको साफ रखना चाहिए. रेस्ट. While we sleep, our body gets time to repair its worn out cells and tissues and to relax. Also, it gets time to grow while we sleep. So, proper hours of rest are important to stay healthy and energized. अब देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है क्या करती है, जितने भी worn out tissues हैं उनको रिपेयर करती है, सेल्स को रिपेयर करती है, राइट. और ये वो टाइम है कि जब हम ग्रो करते हैं. So proper hours of rest जो है बहुत important है. Diseases. A disease can be defined as a condition due to which a part of the body or a whole body is unable to function properly. There are 2 main types of diseases, communicable and non-communicable. Non-communicable diseases.
Non-communicable diseases do not transmit or spread from one person to another. They may be caused due to lack of food component. For example, scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. आपकी दो तरह की डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं और जनरली किसी फूड कंपोनेंट की डिफिशियंसी से हो जाता है. फॉर एग्जांपल, स्कर्वी आपका होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से. Non-communicable diseases are also called deficiency diseases. A person who suffers from the lack of components in his/her diet over a long period of time is said to be in a state of malnutrition. Some deficiency diseases, their causes and symptoms along with the source of vitamins and minerals are tabulated below. अब देखिए, आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं वो जनरली आपकी डिफिशियंसी डिसीजेज ही होती हैं. ये पर्सन अगर किसी कंपोनेंट या किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उससे कहते हैं हम माल न्यूट्रिशन. तो देखिए, आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको डिसीज दी गई हैं, देन ये कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसके सिम्टम्स एंड कहाँ से आपको ये मिल सकता है, यानी सोर्सेज. तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की. इट इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. Symptoms: inability to see clearly in dim light. Sources of vitamins and minerals: green leafy vegetables, carrots and milk. विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस और इसके सिम्टम है कि आप डिम लाइट में आप क्लियरली नहीं देख पाते हैं. विटामिन ए आपको कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स या फिर मिल्क से. नेक्स्ट इज बेरी. ये होता है आपके विटामिन बी की कमी से और इसका सिम्टम है प्रॉब्लम ऑफ इनडाइजेशन. और आप कहाँ से आपको विटामिन बी मिलेगा? इन सारे ही सोर्सेज से. नेक्स्ट इज स्कर्वी. स्कर्वी अभी आपने पढ़ा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स. एंड आपको विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, राइट, जैसे कि आपके खट्टे फ्रूट्स. रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी की कमी से. एंड सिम्टम्स क्या है? सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आपको विटामिन डी मिलेगा. अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन. इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस, लिथार्जी, डार्क सर्कल्स अराउंड आइज, लॉस ऑफ एपेटाइट. बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हो, आपको लिथार्जी फील होती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है, राइट. तो इसका मतलब आयरन की कमी है. तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एंड मीट से. नेक्स्ट इज गोइटर. ये होता है आपका आयोडीन की कमी से एंड इसके सिम्टम है सोलन ग्लैंड इन द नेक, इम्प्रॉपर ग्रोथ. नेक के अराउंड हमारी जो ग्लैंड्स है ना वो फूल जाती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं. एंड ये आपको कहाँ से मिलता है? सी फूड एंड सॉल्ट. इसीलिए आपने सॉल्ट में देखा होगा कभी, उसमें लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट. दैट मीन्स उसमें आयोडीन मिक्सड है. वीक बोन्स एंड टीथ. ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. एंड इसके सिम्टम्स क्या है? अनहेल्दी टीथ, वीक बोन्स और कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी आप कहाँ से पूरी कर सकते हैं? मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से. Sneezing, coughing and rashes are some symptoms that occur in some people when they are exposed to dust, certain food and animals, as they are sensitive to all these. This sensitivity is known as allergy. Allergies are non-communicable. Excess of components can also be bad for health. For example, excessive intake of fatty food may result in obesity. अब जैसे कई बार आप खांसते हैं, छींकते हैं या रैशेस हो जाते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? जब आप डस्ट की तरफ एक्सपोज होते हो या कुछ किसी सर्टेन फूड आइटम से या एनिमल्स की वजह से होते हैं. तो आपकी इस सेंसिटिविटी को बोलते हैं एलर्जी. तो एलर्जी आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती है, राइट. अब जैसे आपका एक्सेस कंपोनेंट कोई ले लेते हैं आप, एक्सेस में जैसे आपने फैट ले लिया, राइट, तो उससे क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाता है. Communicable diseases. Communicable diseases transmit from a sick person to a healthy person. Different ages carry the germs of such communicable diseases from infected person to healthy persons and make these healthy people ill. These agents are as follows. अब communicable disease होती है एक sick person से healthy person में फैलती है. सबसे पहला agent देखते हैं food and water. Flies sit on uncovered food and transfer germs to the food which can infect a healthy person when he/she eats this food. देखिए, फ्लाइज जो होती हैं आपकी अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती हैं, राइट, और फिर जर्म्स को कैरी करती हैं फूड तक और उसके बाद कोई हेल्दी पर्सन उसे खाएगा तो ऑब्वियसली वो बीमार पड़ेगा. ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर ऑल्सो causes the spread of certain diseases. Cholera, typhoid and jaundice are disease that spread in this manner. इसी तरह से अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, like these. Air. When an infected person sneezes or coughs, germs are released into the air. A healthy person can get infected by these germs. Common cold, influenza and chickenpox spread in this manner.
अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, खांसेगा या फिर छींकेगा तो क्या होगा, जर्म्स रिलीज हो जाएंगे एयर में, और फिर हेल्दी पर्सन जो एयर में ब्रीथ कर रहा है वो इन्फेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स इसी तरह से फैलते हैं। एनिमल्स, इंसेक्ट, सम इंसेक्ट ट्रांसमिट डिसीज कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटोज दैट कैरी द डिसीज कैरिंग जर्म्स। द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग स्प्रेड्स अ डिसीज कॉल्ड rabies. Examples of some communicable diseases, their modes of transmission and preventive measures have been given in the following table. अब देखिए कुछ इंसेक्ट ना डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में। जैसे मलेरिया है, मलेरिया कैसे फैलता है, मस्कीटो की बाइट से, राइट। तो देखिए कुछ आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको डिसीज दी गए हैं, उनके सिम्टम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड उनकी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है। सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड की। इसका सिम्टम है फीवर एंड हेडेक, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फ्लाइज, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है, प्रैक्टिसिंग पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। पर्सनल हाइजीन आपको रखना है, सैनिटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है आपका बॉइल्ड होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं आपके हेडेक, नोज डिस्चार्ज, हाई फीवर, मस्कुलर पेन, कॉफ एंड स्नीजिंग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये आपके एयर के थ्रू होता है। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, स्टेइंग अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, गुड सैनिटेशन। इन्फेक्टेड पर्सन से आप दूरी बना के रखें। नेक्स्ट इज कॉलेरा। इसके सिम्टम्स है वाटरी स्टूल, वॉमिटिंग, संकन आइज। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फ्लाइज, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके कि फ्लाइज है या फिर आपने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू आपको कॉलेरा होने का डर रहता है। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है प्रैक्टिसिंग पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। मलेरिया, इसके सिम्टम है हेडेक, नोजिया, हाई फीवर, मस्कुलर पेन, और ये किससे होता है, बाइट ऑफ मस्कीटो से। यूज ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट्स, क्लीन सराउंडिंग। एक तो आप जब मच्छर होते हैं तो इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज करें, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखें। Prevention of communicable diseases. The spread of communicable diseases can be prevented if we take the following steps. The houses should be kept clean, well ventilated and free of mosquitoes. There should be sufficient sunlight entering the house. Water should be boiled and kept covered. Food should also be kept covered. We should not eat stale food. सबसे पहले आपका घर क्लीन होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, फ्री ऑफ मस्कीटोज होना चाहिए, एंड सफिशिएंट सनलाइट आनी चाहिए। पानी आपको बॉइल्ड यूज़ करना है, उसको कवर्ड रखना है, फूड भी आपका कवर्ड होना चाहिए, एंड नेवर यूज स्टेल फूड। स्टेल फूड नहीं खाना, यानी बासी खाना नहीं खाना है। In villages, water in wells should be chlorinated regularly. Water should not be allowed to stagnate as mosquitoes lay eggs in the standing water. We should drink pasteurized milk. We should not use utensils, towels, handkerchiefs and other things used by a person suffering from a communicable disease. Stay home when you are sick. Always wash hands with soap and water before and after eating food, and also after using the toilet. Use a handkerchief while coughing or sneezing. This prevents the spread of disease causing germs. देखिए गांव में वाटर जो होता है वेल का, उसको क्लोरिनेट करना चाहिए। कैसे करेंगे, क्लोरीन की टैबलेट्स उसको डाल के, राइट। वाटर को स्टेगनेट नहीं होने देना है, क्योंकि ऐसे स्टेगनेट वाटर पे मस्कीटोज ब्रीड करते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क आपको पीना है। आपको किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, यानी कि जिसको कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उसका कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं यूज़ करना है। जब आप बीमार हो तो घर पे रहें, और खाना खाने से पहले, बाद में, और टॉयलेट करते टाइम जब आप यूज़ करते हैं टॉयलेट को, तो आप अपने हैंड्स वॉश करें हमेशा। जब भी आपको खांसी आए, आपको कॉफ आए, तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, एक हैंकरचीफ यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि जो डिसीज कॉजिंग जर्म्स है वो स्प्रेड नहीं होंगे। वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन एंड द फर्स्ट वैक्सीन was first developed by Edward Jenner to treat smallpox, a deadly disease. Since then, vaccines against many diseases have been developed. Vaccination helps the body to fight against diseases and infections. Vaccines are mostly given to young children. For example, oral polio vaccine is given orally to children to prevent polio. Timely vaccination prevents many diseases and protect us from their effects throughout lifetime. आपका वैक्सीनेशन एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें आपको बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाया जाता है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो आपका जो पहला वैक्सीन था वो किसने इन्वेंट किया था, डेवलप किया था? एडवर्ड जेनर ने। एक बहुत ही डेडली डिसीज़ थी उन दिनों, स्मॉल पॉक्स, उसके लिए, राइट। तो वैक्सीनेशन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में को हेल्प करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में। तो आपकी वैक्सीन जो तो मोस्टली छोटे बच्चों को दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे पोलियो की अगर हम बात करें, वो ओरली दी जाती है।
जिससे बच्चों में और जो पोलियो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। Let us remember, a balanced diet that contains adequate amount of different components of food for the healthy functioning of our body. Disease in which our body is no longer in healthy condition. Malnutrition is physical state of a person which results due to lack of essential food components in the body. Vaccine is substance which protects our body against disease. Pasteurized milk is heated for some time at a particular temperature and then allowed to cool at a very low temperature to kill harmful bacteria. Chlorinated treated with chlorine. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।